Hello students, welcome back to Atharo Tutors. Today we are going to take class 10th physics which we have already started. So starting की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है so please you can click on the I button जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा. Click on the I button to see what we had already discussed. So in that video we had discussed about reflection of light. Reflection of light क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि what is incident ray, what is reflected ray and what is normal. And I had told that कि when an incident ray strikes some object it bounces back in the same medium. तो ये bouncing back of light जो था it was called reflection, and in that I had given law of reflection also which you can refer. Here I just want to ask you one question कि what if the light is the incident on the normal, मतलब if यहाँ पे इंसिडेंट रे इज मेकिंग सम एंगल, सो इफ इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द सरफेस देन what will be the angle of incidence? What will be the angle of incidence? This question is generally asked. So as you see, if the ray is incident on the normal, it is not going to make any angle. कोई भी एंगल वो बनाएगा नहीं, कोई भी एंगल वो बनाएगा नहीं. That's why you'll say that in such a case, if the ray is incident on the normal, angle of incidence will be 0. Now if angle of incidence is 0, what about the angle of reflection? So angle of reflection will also be 0. So what will happen in this case? So in this case, if the ray is incident through this, if the ray is incident through normal, it will be reflected back through the same path. So this you have to know. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. So okay students, now I will move ahead. Now this reflection is basically of two types. ये रिफ्लेक्शन जो होता है ये खुद दो टाइप का होता है. एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. Now if a beam of light, now you understand what is meant by beam of light. In the first video I had discussed what is ray and when it is known as beam of light. So if a beam of light falls on a smooth surface, if a beam of light falls on a smooth surface, all of the light is reflected back in the same medium, making the same angle. So इससे होता क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है वो डेजलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. इट प्रोड्यूसेस डेजलिंग इफेक्ट. ये डेजलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. ये कुछ यूं होता है कि इफ यू हैव अ स्मूथ सरफेस, अगर आपका सरफेस स्मूथ है, if you have a smooth surface and if light ray is, now you know I had told if you have a group of light, group of rays, it is known as beam of light. So all will be reflected making angle equal to angle of incidence. ऐसे ये reflect back होंगे, they will be reflected back this way. They will be, if you have this is a incident ray, beam of light, all are reflected back. Now since the incident light, the beam of light
in the beam of light, all the rays are parallel to each other. Similarly, when they will be reflected back, they all will be parallel to each other. They all will be parallel to each other. तो इससे क्या होगा, सारी लाइट एक साथ हमारे आंखों पर आएगी, सभी की सभी लाइटें एक साथ हमारे आंख पर गिरेगी, और जिसकी वजह से ये डेजलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. बिकॉज ऑफ विच द डेजलिंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी प्रॉपरली. हम लोग प्रॉपरली चीजों को देख नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्च लाइट हुआ. अब सर्च लाइट अगर आपके मुंह के ऊपर जला दिया जाए, सो व्हाट विल हैपन, एक बार ये आपके सामने अंधेरा आ जाएगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस. सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो कि बताते हैं कि व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का हेडलाइट हो गया, हेडलाइट ऑफ द ऑटोमोबाइल, इसका भी लाइट जो निकलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गिव्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. लाइट गिव्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसलिए वी गेट द सेम बीम ऑफ लाइट. सो इन दिस लाइट वी आर, अगर ये हमारे आंखों पर आता है तो वी आर अनएबल टू सी थिंग्स, तो हम चीजों को देख नहीं पाते हैं. नाउ सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. जो सेकेंड है वो है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता यह है कि जब लाइट किसी अनइवन सरफेस पे, रफ सरफेस पर पड़ती है, इफ द लाइट, कोई हमारा रफ सा सरफेस है, इफ यू हैव अ रफ सरफेस समथिंग लाइक दिस, हमारे पास रफ सरफेस है, एंड इफ द रेज इंसिडेंट, अब रे अलग अलग जगहों पर इंसिडेंट होगा. इफ द रेज इंसिडेंट, सपोज यू हैव अ बीम ऑफ लाइट से, सो नाउ दे विल नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉज फॉलोड since the surface was smooth. Here law of reflection will not be followed. रे अपने हिसाब से as per the surface जहाँ पे गिर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये they will move, ये आप उस हिसाब से मूव करेंगे. So if the ray of light is incident on some irregular surface, you find that कि after reflection, though incident ray were parallel to each other, the reflected ray are not parallel to each other. ये parallel to each other नहीं है, यहाँ पे they can intersect each other, ऐसा हो सकता है. Now in this we can see things, चीजों को हम देख सकते हैं. So अब इस irregular reflection को एक और नाम दिया गया है. फॉर दिस, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक नाम इसे और भी दिया गया है, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये नाम इसको दिया गया है. सो इन दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट फॉलोड. रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी तरफ जा सकती है, जैसे कि आप ले लीजिए, इफ यू हैव अ चेयर पे लाइट गिरे, वुड पे लाइट गिरे, तो इन सब पे जो लाइट गिरती है दे क्रिएट इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं. नहीं तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सो ऑल ऑफ द लाइट विल फॉल ऑन आवर आईज एंड विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स. बट बिकॉज ऑफ दिस irregular reflection we are able to see light. So I hope you all have understood what is regular reflection and what is irregular reflection. Now we will move to a very important concept, image.
व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है, बिकॉज दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट इमेज and formation of image with the in case of different kinds of mirror and different kinds of lenses. So let us see what an image is. So whenever a beam of light strikes an object and is reflected back, they meet at some point. They meet at some point, या तो appear to be meeting at some point. तो ray of light after reflection either actually meet at some point, कहीं पे actually मिल रहे होते हैं, और they appear to be meeting, या मिलते हुए प्रतीत होते हैं. So the point where this happens, the point where this happens is the point of image. तो हम कहते हैं कि जहां पे ये रे मिलते हैं हम कहते हैं इमेज बना. So image formation takes place whenever light after reflection, the beam of light after reflection meets at a point or appears to be meeting at a point. अब ये इमेज जो होता है, खुद ये दो टाइप का इमेज हमें मिलता है. रियल इमेज, हमें रियल इमेज मिल सकता है, और वी कैन गेट वर्चुअल इमेज, और वी कैन गेट वर्चुअल इमेज. सो रियल इमेज तब बनता है व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. हियर रे ऑफ लाइट actually meet, better you can call it beam of light, don't call it ray of light, you call it beam of light. So beam of light means, beam of light, it consists of many rays. So that rays when after reflection actually meet, so actually meet after reflection. So if this happens, then we say that the image formed is real. Then we say that the image formed is real. And here what happens? What happens here is that beam of light appears to be meeting after reflection. यहाँ पे ये चीज होती है कि जो बीम ऑफ लाइट है जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, सो आफ्टर दैट इट इज रिफ्लेक्टेड एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स. इफ इट इज एक्चुअली मीटिंग, अगर वो एक्चुअली मिल रहा है तब तो रियल इमेज बनाएगा, बट अगर वो अपीयर करता है टू बी मीटिंग देन वो वर्चुअल इमेज बनाएगा. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक तरीका ये भी है कि रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है. लाइक इन थिएटर्स यू सी द मूवीज, आप मूवी देखते हैं थ्रू द प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन पे दिखाया जाता है, आप देख पाते हैं. सो इट्स अ रियल इमेज. तो रियल इमेज की एक खासियत ये भी है कि इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वेयर एज ये जो होगा कैनॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, cannot be taken on screen. और एक खासियत होती है इनकी, रियल इमेज जो होता है ये इरेक्ट होता है, ये सीधे बनता है, इरेक्ट, ऐसे सीधे इमेज फॉर्मेशन होगा. वेयर एज जो ये वर्चुअल इमेज होता है, ये हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनता है. ओह आई मेड अ मिस्टेक. ये जो रियल इमेज होता है ये इन्वर्टेड होता है, दिस इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, ऐसे बनेगा. और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, ऐसे सीधे, ऐसे बनता है. सो अब ये रियल इमेज जो है यू कैन गेट इन केस ऑफ कर्व स्फेरिकल मिरर्स,
कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में आपको रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है ये प्लेन मिरर में बनता है। नाउ व्हाट इज अ प्लेन मिरर? सो हम लोग अपने लाइफ का कम से कम 2-3 साल तो उसके सामने निकाल ही देते हैं। प्लेन मिरर वही होता है जिसके सामने हम खड़े होकर अपने बालों को कंघी करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। वी लुक एट आवर फेस और हेयर, ये सब हम देखते रहते हैं। सो दैट इज द प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ये वर्चुअल होता है। तो अब प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लेट अस सी। आई होप यू गॉट व्हाट इट meant by a real image and what is a virtual image. Now let us see what are the characteristics of image formed in a plane mirror. It's very important, again examination point of view important है, you should know this. Questions are asked for 1-2 marks on this. So you have this characteristics of image formed by a plane mirror. Formed by a plane mirror. Plane mirror आईना। आईने में जो इमेज बनता है उसकी हम खासियत डिस्कस करते हैं। सो पहले कैरेक्टरिस्टिक तो ये होती है, इमेज जो होता है, इमेज जो बनता है, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये होता है। इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में ये वर्चुअल इमेज होता है, और वर्चुअल है तो ये इरेक्ट होगा। और हम लोग देखते भी हैं कि प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज बनता है ये सीधा होता है। जिस तरह हम खड़े होते हैं इमेज उसी तरह मिरर में आता है। सो फर्स्ट इमेज जो होता है इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड चीज ये होता है कि इमेज की जो साइज होती है, इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होता है। देन थर्डली ये होता है कि इमेज इज at same distance behind the mirror, as it is in front of the mirror, as it is in front of the mirror। मतलब कि आप इमेज से जितने दूरी पर खड़े हैं, आप इमेज से जितनी दूरी पर खड़े हैं, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर रखा गया है उसका इमेज मिरर के अंदर भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड लास्टली इमेज जो होता है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। प्लेन मिरर में आपका लेफ्ट मिरर में राइट दिखेगा, तो लेफ्ट का राइट दिखेगा मिरर में और राइट का मिरर में लेफ्ट दिखेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लैटरल इन्वर्शन। एंड दिस इज द रीजन, यही कारण है कि आप एम्बुलेंस गाड़ी देखते होंगे, व्हेन यू लुक एट द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस इज रिटन दिस वे, ये एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है। ये दिस इज बिकॉज, ये इसलिए लिखा होता है
कि ताकि आगे जो गाड़ी चल रही है, जो गाड़ी आगे चल रही है वो अपने रेयर व्यू मिरर में देखें तो उनको ये सीधा दिखाई दे। बिकॉज ऑफ द लैटरल इन्वर्शन, ये जो उल्टा है वहां पे सीधा दिखाई देगा एंड दे कैन फाइंड आउट कि विच व्हीकल इज बिहाइंड, उनके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस देख के वो लोग रास्ता दे सकते हैं। सो दिस इज लैटरल इन्वर्शन। सो आई होप यू हैव enjoyed this video। आज की क्लास यही। Now in the next video to come we'll be discussing about spherical mirror, type of mirrors, mirror से related कुछ terms हम discuss करेंगे and then we'll discuss about the rule for the formation of image। So keep watching my video and do subscribe, tell your friends to also subscribe। आपका cooperation must है। So this is all for today। Do take care of yourself and have a very nice day। Thank you।